Welcome back to my channel. Today I will start chemical bonding. In chemical bonding, I like to start electrovalent bond or ionic bond. Okay, as you know, in our syllabus, electrical bond or ionic bond, covalent bond. Okay, electrovalent bond or ionic bond, then covalent bond. Two types of covalent bond: polar covalent bond and non-polar covalent bond, then dative bond or coordinate bond. So this much are in syllabus. So in every section today I will continue and complete ionic bond or electrovalent bond. In next class covalent bond, and also then in successive class coordinate bond or dative bond. Okay, so first of all I can say, what do you mean by chemical bonding? Chemical bonding is defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability. Chemical bonding is defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain stability. Okay, then chemical bonding, I told you classification of chemical bonding: electrovalent bond or ionic bond, covalent bond. Okay, then dative bond or coordinate bond. So first electrovalent bond, the bond found between two atoms due to transfer of electrons is called electrovalent bond or ionic bond. Okay, so generally it takes place between the atoms of metallic element and the atoms of non-metallic elements, because you know atoms are electron donor. They transfer electron. By donating electron they lose electron to become cation, and non-metals are electron acceptor. They gain electron by and becomes anion. So cation plus anion दोनों मिल जाते. So then the two ion will combine together and form a bond that is known as ionic bond, and the compound so formed is called ionic compound. Okay, then ionic compound or electrovalent compound. Then I like to say electrovalency. What do you mean by electrovalency? The number of electrons that an element loses or gains to form electrovalent bond. The number of electrons that an element loses or gains to form an electrovalent bond is called electrovalency. अच्छी तरह तुम लोग को जानकारी होना चाहिए, मेटालिक एलिमेंट तब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते. ओके, तब नॉन मेटल के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. सो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो अल्काली मेटल इलेक्ट्रोवैलेंसी सबसे हायर, एंड 17 ग्रुप एलिमेंट जो नॉन मेटल उन्हीं का इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी सबसे हायर. ओके, सो मैंने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रोवैलेंसी, नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकेंड ग्रुप का 2. ओके, लाइक वाइज सो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज करते और गेन करते, सो उसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी इतना ही होगा. ओके, सो देन व्हाट आर द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. फर्स्ट तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल से लेफ्ट से अगर राइट को जाएंगे तब आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा. ओके, सो एज मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज मेटल्स में लो आयनाइजेशन पोटेंशियल. हम राइट को अगर जाएंगे टुवर्ड्स नॉन मेटालिक साइड तब आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है. सो वन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond or electrovalent bond. So if
if an element has low ionization potential, so if the ionization potential is low, it will lose electrons easily, so that to form a cation easily. So if the ionization potential of an element is low, it can easily lose electron to form cation. Okay, so metals have low ionization energy, then it can easily lose electron and becomes cation. Then high electron affinity, second condition, if the electron affinity of an element is high, then it will form anion easily by gaining electron. Non-metals have high electron affinity because लेफ्ट से राइट को जब जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है. So they can easily gain electron and become anion. So cation formation अगर हो गया, anion अगर formation हो गया, cation plus anion दोनों अट्रैक्ट करेंगे by strong electrostatic force. ओके, इसी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत हाई रहता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसीलिए ये बॉन्ड का नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. और द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू आयंस, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ आयंस. एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, उन्हीं का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो बॉन्ड होता है, इसीलिए इससे भी आयनिक बॉन्ड कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट, जनरली मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, 2 and 13, अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल, देन 13 जो एल्युमिनियम जिसमें रहता है, बोरॉन एल्युमिनियम, तब ये 13 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप हैव, क्या होता है, हैव ए टेंडेंसी ऑफ टू लूज इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन सहज में लूज माने इलेक्ट्रॉन लूज करते फ्रॉम देयर वैलेंसी सेल. ओके, सो दे कंबाइन विथ नॉन मेटल को क्या होता है, फॉर किसी का ग्रुप में नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17, मेटल्स of group 1 highly reactive, then group 2 and group 13 they have valency 1, 2, 3, they lose electron to become cation, and the elements of non-metals having which are in group 15, 16 जो nitrogen group, then oxygen group, then halogens which have a tendency to gain electron, so they gain electron and become anion. Okay, अच्छा, तो group 1 element are highly electropositive because they are metals or electropositive in nature, they can easily lose electron. They are electron negative, they are highly electropositive, their reactivity increases डाउन ए ग्रुप. सो सबसे फास्ट ग्रुप में सबसे मेटालिक होता है सीजियम. ओके, फ्रांसियम हम नहीं लेंगे बिकॉज इसका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होता है, और नीचे होने पर भी इसका रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण फ्रांसियम को हम ओमिट कर देते. तब सीजियम इज हाईली माने इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 17 ग्रुप का 15 ना फ्लोरीन फ्लोरीन. सो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट और सीजियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो इन पीरियोडिक टेबल सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड. ये क्वेश्चन आता है, व्हिच इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड इन पीरियोडिक टेबल, यू शुड राइट दैट इज सीजियम fluoride. Okay, then electronic dot structure, these are very important. Structure of NaCl, sodium chloride. Okay, so Na का कितना बाबा, Na का 1, आउटर सेल में रहा 1,
क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का आउटर सेल में रहा 17 आउटर सेल में 7। ओके, ये सोडियम एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 281। ये क्लोरीन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 287। ओके, तब सोडियम का 281 प्लस क्लोरीन का 287 दोनों का हो गया। तब इन दोनों जो मिले तब ये हो जाएगा Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है Na+, सोडियम आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इट विल बिकम स्टेबल 2 ये होगा क्लोराइड आयन 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एक गया था इसके पास, ये हो जाएगा क्लोराइड आयन, ये माइनस, क्योंकि वो गेन किया। टू 288, इसका भी 288 हो गया, तो भी ये हो गया क्लोराइड आयन। सो वी कैन राइट डाउन दिस और NaCl। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन इन ICSE, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, देन मैग्नीशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2। सो Mg मैग्नीशियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका बाहर सेल में 2 होता है। तो मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम क्लोराइड, 2 क्लोराइड होना चाहिए, तो क्लोराइड का सेवन और एक क्लोराइड 2 4 5 6 7। सो ये एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा। ओके, तो हम यहाँ प्लस दे देते, तब ये क्या होता है, इसको लिखते क्लोरीन एटम, ये होता है 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17। तब ये हो जाएगा Mg2+ मैग्नीशियम आयन। सो ये हो गया 2,8, ये इट विल बिकम स्टेबल। सो 2Cl का हो गया 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ एक 7 एक आया था, हाँ। सो क्लोराइड आयन 2,8। ओके, 2,8 इसका स्टेबल हो गया ये। ओके, सो और MgCl2। ओके, देन MgCl2, देन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का 20, तो अब यहाँ पे 2 रहा,
कैल्शियम एटम। ऑक्सीजन एटम का 6, ओके। 2 फास्ट होता है 2 6, ओके। इसका 6 है, उससे 2 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब ये हो गया, प्लस दे दो, ओके। ये दोनों वहाँ जाएंगे, तो अब ये हो गया Ca2 प्लस Ca2 दे दिया, टू 8 8, इट विल बिकम स्टेबल। तो अब ऑक्सीजन का 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 माइनस ऑक्साइड आयन, तो ये हो गया 2 8, तब ऑक्साइड आयन ये इट विल बिकम 2 8, और इसको हम लिख सकते CaO, तब कैल्शियम ऑक्साइड बिकम स्टेबल। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओनली लिटिल बिट I will explain, so then only then what are the characteristics of ionic compound? मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट, मेनली 1 मेटालिक एटम्स, मेटालिक एलिमेंट का एटम, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट का एटम, इनका बीच में जो बॉन्ड होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ओके। बिकॉज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, ओके। Then the compounds so formed are called ionic compound or electrovalent compound. So what are the characteristics properties of ionic compound or electrovalent compound? These are number 1 hard solid which consist of ions. देखो सोडियम क्लोराइड ये बहुत हार्ड होता है, जिसमें Na+ आयन रहता, Cl- आयन होता, इन दोनों कंबाइन होकर रहते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Then high melting point and boiling point, okay. Then they are not in solid state, they don't conduct electricity, but they can conduct electricity in their molten or fused state or in their aqueous solution. aqueous solution में और molten और fused state में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स। क्वेश्चन आता है हाउ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टेन और फ्यूज स्टेट और एक्यूज सॉल्यूशन, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू ओनली आंसर लाइक गोज लाइक दिस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स, बस 1 मार्क आंसर, ओके। देन इन एक्यूज सॉल्यूशन दे डिसोसिएट्स इनटू आयन। मैंने कहा था एक आयोनाइजेशन होता है, कोवैलेंट कंपाउंड जब आयन फॉर्मेशन करते हैं, जैसे वो हो जाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड को कहा जाएगा जो आयन फॉर्मेशन करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। जब आयनिक कंपाउंड आयन फॉर्मेशन करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोसिएशन। सो इन एक्यूज सॉल्यूशन दे डिसोसिएट्स इनटू आयन्स,
सपोज पानी में इन वाटर व्हेन वी पुट सॉल्ट NaCl, then NaCl will become Na plus ion and Cl minus ion. This process, the dissociation of Na plus and Cl minus from NaCl is known as dissociation. Next, they are soluble in organic solvent like water, but insoluble. Now they are soluble in inorganic solvent like water, but soluble in organic solvents. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सॉल्वेंट होते हैं उसी में वो सॉल्युबल नहीं होते. ओके स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड completed today. So very soon in next class I will continue one new portion, that is covalent bond. After completion of covalent bond, successively I will continue coordinate bond. Then this chapter will be completed. Okay, hoping you all the best. I remain. Thank you very much.